اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم ناظرین و ناظرات، المہدی ٹی وی کے پروگرام صراط مستقیم کی قسط نمبر 58 کے ساتھ سخاوت حسین سندرالوی حاضر خدمت ہے۔ صراط مستقیم میں عموماً ہم اوکیجنل ڈسکشن کرتے ہیں اور آج ہم رمضان کے بارے میں گفتگو کرنا چاہیں گے، اس لیے کہ رمضان المبارک شروع ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے تو میں تمام حضرات و خواتین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ ساتھ ہی میں آپ تمام حضرات و خواتین کو مبارکباد دیتا ہوں، رمضان مبارک اور رمضان کریم کہنے کی سعادت بھی حاصل کرتا ہوں۔ ہمارا فارمیٹ یہ ہوتا ہے صراط مستقیم کا عموماً کہ جیسے ہی ہم پروگرام شروع کرتے ہیں ہم کالز لینی شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ کال کرنا چاہیں تو نمبر ہمارا نوٹ کر لیں، اسکرین پہ بھی نمبر آ رہا ہوگا 7186756987۔ آپ اس نمبر پہ کال کر کے روزے کے بارے میں، رمضان کے بارے میں کوئی بھی سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ آج میں ابتداً یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو اللہ کریم کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی ذات کی عنایت ہے کہ ایک مرتبہ پھر ہمیں رمضان دیکھنا نصیب ہو گیا۔ اللہ کریم ہمارے تمام ناظرین و ناظرات کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے اور رمضان مبارک کی ساری نعمتوں، برکتوں، عنایتوں سے نواز دے۔ رمضان عبادت کا مہینہ ہے، اس میں کثرت سے ذکر الہی کریں۔ رمضان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرنے کا مہینہ ہے، اللہ کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کریں۔ رمضان چیریٹی کا مہینہ ہے، اس میں زکوٰۃ اور خمس دے، راہ خدا میں خرچ کریں۔ رمضان سابقہ گناہوں سے معافی اور آئندہ نئی زندگی شروع کرنے کا درس دیتا ہے۔ رمضان المبارک میں کچھ تو امپورٹنٹ ڈیٹس ہیں، تاریخیں ہیں، ان کا بھی خیال رکھیں۔ جیسے پہلی رمضان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صحیفہ نازل ہوا تھا۔ 6، 12 اور 18 کو تورات، زبور اور انجیل نازل ہوئی۔ لیلۃ القدر میں قرآن مجید نازل ہوا۔ ابھی ہم ڈیٹس کو ڈسکس کریں گے، مگر ابھی ہم پہلی کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، کینیڈا سے اعجاز نقوی عرض کر رہا ہوں۔ جی سر۔ اتفاق یہ ہے کہ میرا وہ ہوا ہوا بائی پاس، جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے روزے سے منع کیا۔ جی جی۔ آپ سے مطلب گزارش یہ کرنی تھی کہ مطلب اب میں نے وہ دینا ہے جو فدیہ، تو مطلب وہ کس حساب سے یا کتنا ہو مطلب؟ ٹھیک ہے، ریاض نقوی فرما رہے ہیں؟ جی جی۔ ریاض نقوی صاحب، جو بھی بھائی یا بہن روزہ نہ رکھ سکے کسالت کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، مرض کی وجہ سے، ان کے لیے ضروری ہے فدیہ، ایک مد، ایک وقت کا کھانا فقیر کے لیے، مسکین کے لیے دینا۔ اس سلسلے میں آپ ہمیں پیسے بھجوا سکتے ہیں، ہم 30 کے 30 دن کا اہتمام آپ کا کر دیں گے
आप हमें या तो अपना नंबर इनायत कर दें, हम आपको कॉल बैक कर लें, या आप हमें बाद में कॉल कर लें, तो इस सिलसिले में हम ये मदद करने के लिए तमाम भाई बहनों की तैयार हैं। मसला भी अर्ज कर दिया है। हेलो, रियाज नकवी साहब की कॉल कट गई थी, वो दोबारा कॉल फरमा सकते हैं, उनसे हम नंबर ले लेंगे और हमारा ऑफिस उनसे रब्ता कर लेगा। कोई भी भाई बहन ऐसी सूरत हाल से दो चार हो तो वो हमें एक वक्त का खाना, एक दिन का जो यानी जाहिर है कि इफ्तार है, वो भेज सकते हैं और उससे इंशाल्लाह हम उनकी मदद करेंगे कि वो गरीबों, मिस्कीनों को, फ़कीरों को भिजवा देंगे। अस्सलामु अलैकुम। जी सर, कौन फरमा रहे? हेलो, कौन साहब फरमा रहे हैं? कौन बोल रहे हैं जनाब? कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? पीर साबिर शाह साहब जी, हुक्म फरमाएं शाह साहब। इस वक्त हम टीवी पे प्रोग्राम कर रहे हैं लाइव, रोजे के बारे में टीवी पर लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं। आप कुछ फरमाना चाहेंगे शाह साहब? कुछ फरमाना चाहेंगे जनाब? दरवाजा खोले ना, दरवाजा क्यों बंद कर देते हैं आप लोग? दरवाजा शाह साहब खुला है, अल्लाह इनको हिदायत करे। दरवाजा खुला है, मगर बस इनको खुदा हिदायत करे, हमारी टीम को। जी, अभी खुला है। मोहतरम नाज़रीन और नाज़रात, इस वक्त हम आपकी खिदमत में प्रोग्राम कर रहे हैं रमज़ान के बारे में। ये प्रोग्राम हमारा आज चंद मिनट और जारी रहेगा, यानी कम से कम 7 बजे से पहले पहले हमने ये प्रोग्राम ख़त्म करना है और उसके बाद फिर हम इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ 7 बजे से दौरे कुरान शुरू करते हैं। एक कॉल और ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो, हेलो, अलैकुम सलाम। अस्सलामु अलैकुम। कॉल ड्रॉप हो गई है। नाज़रीन नाज़रात, रमज़ान के बारे में आप सिरात मुस्तकीम का प्रोग्राम नंबर 58 मुलाज़ा फरमा रहे हैं। हम आज आपकी खिदमत में रमज़ान का प्रोग्राम कर रहे हैं। इसमें अहकाम भी बताएंगे, इसमें अहमियत भी बताएंगे। ख़ास तौर पे हमारा फोकस होगा मसाइल के ऊपर। एक मसला जो हमसे पूछा गया वो ये है कि रियाज नकवी साहब ने पूछा है कि वो रोज़ा नहीं रख सकते, उनकी हार्ट की सर्जरी हुई है। अल्लाह करीम आपको शिफाया फरमाए रियाज नकवी साहब। अलबत्ता जो लोग मरीज़ हैं उनके लिए मसला ये है कि उनको रोज़ा नहीं रखना है, ताहम उन्हें एक दिन का जो खाना है वो गरीबों को देना है और उस सिलसिले में जो भी एवरेज हो, तकरीबन जो जिस एवरेज से एक फ़कीर मिस्कीन खाना खा सके, यानी रोज़ा रख सके या इफ्तार कर सके, उस एवरेज के ज़रिए आप पैसे भिजवाएंगे। इस सिलसिले में हम भी आपकी मदद कर सकते हैं। एक मुद्द जो है वो एहतियातन 14 छटांक गंदम होती है जो फ़कीर को देनी है। आजकल आसानी के तौर पर हम ये करते हैं कि यहाँ $5 पर रोज़ा हम ले लेते हैं और वो हम गरीबों को भेज देते हैं। अगर आप पूरा महीना रोज़े नहीं रख पा रहे तो $150 आप हमें भेज दें, हम इंशाअल्लाह गरीबों को भेज देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
یہ فاطمہ بہن آپ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ آپ کو مبارک ہو، شکریہ. جی فرمائی. بہت شکریہ. فاطمہ بہن سوال کر رہی ہیں کہ ذرا اس کی آواز کو سیٹ کر دیں، بڑھا دیں، یہ جو آواز کال آ رہی ہے آواز پوری. تو میں آپ کے سوال کا ابھی جواب عرض کرتا ہوں اور آپ کے لیے دعا گو بھی ہوں. زیارات میں بھی آپ کے لیے دعا کی ہے اور انشاءاللہ دعا گو ہوں، اللہ سلامت رکھے آپ کو. جواب یہ ہے جو آپ نے سوال کیا ہے کہ مسوڑوں سے اگر خون آتا ہے دوران روزہ تو اس سے روزے پر کوئی فرق پڑتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اس سے روزہ بالکل ٹھیک رہتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. بہت شکریہ. حتیٰ کہ آج ہی جمعہ کی نماز کے بعد ہم نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ اگر آپ دانتوں کا معائنہ کروا رہے ہیں، کلیننگ کروا رہے ہیں، وہ بھی جائز ہے، روٹ کنالنگ بھی جائز ہے. اس دوران روزے کے دوران آپ بلڈ بھی دے سکتے ہیں ٹیسٹ کے لیے. آپ خود بھی شوگر وغیرہ کا اگر ٹیسٹ کر رہے ہیں تو خون نکال کے ٹیسٹ کرنا بالکل جائز ہے. محترم ناظرین و حضرات، روزے شریعت محمد میں فرض ہیں. ہر عاقل پر، ہر مسلمان پر، ہر ایسے شخص پر کہ جو شدید بیمار نہ ہو، ہر وہ عورت جو اسپیشل جو بلڈ ہوتا ہے ان ایام سے پاک ہو، ہر وہ شخص جو سفر میں نہ ہو، ہر وہ شخص جس کو روزے کی وجہ سے مزید مرض میں شدت کا احساس نہ ہو، ان پر روزہ فرض ہے. جان بوجھ کے اگر کوئی روزہ چھوڑے گا تو اس کو کفارہ دینا ہوگا، اور کفارہ 60 روزے پے در پے رکھنے ہوتے ہیں. 60 روزے کم از کم اس میں سے 30 لگاتار رکھنے ہیں، ورنہ پھر دوبارہ سے شروع کرنے پڑیں گے. یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، $300 کے لگ بھگ، یا غلام آزاد کرنا اس کا کفارہ ہے، جو کہ آج کل غلام کی بحث آلموسٹ ختم ہے. روزہ جب آپ رکھتے ہیں تو روزے سے مراد اللہ سے رابطہ ہے. اللہ تعالیٰ ایک آیت کا ثواب ختم قرآن کے برابر لکھتا ہے، ایک فریضے کا ثواب 70 کے برابر ہے. انفاسکم فیہ تسبیح، سانس جو لیتے ہیں وہ تسبیح شمار ہوتا ہے. نومکم فیہ عبادہ، سوتے ہیں تو سونا بھی عبادت خدا شمار ہوتا ہے. ایک کال اور لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو. علیکم السلام. علیکم السلام. میں سنی بول رہی ہوں. جی. اور میں یہ سوال ہے کہ اگر کوئی بندہ سفر میں ہو تو کیا وہ سفر میں قضا روزے رکھ سکتا ہے؟ دوبارہ کہیے گا. اگر کوئی بندہ سفر میں ہو جی کیا وہ روزے رکھ سکتا ہے؟ بہت شکریہ سمن زہرا، اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہترین سوال آپ نے کیا ہے. ابھی میں اس کا جواب عرض کرتا ہوں. سمن زہرا نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص سفر میں ہو تو کیا روزہ رکھ سکتا ہے؟ تو ابھی میں نے عرض کیا ہے کہ مسافر روزہ نہیں رکھے گا. اگر کوئی شخص مریض ہو اور روزہ رکھے، یا اگر کوئی شخص سفر میں ہو اور روزہ رکھے گا تو وہ روزہ جو واجب ہے وہ حرام ہو جاتا ہے. اگر 14 میل آپ جا رہے ہیں اور واپس آ رہے ہیں
तकरीबन 14 मील, तो आपका रोज़ा साकित हो जाता है, बशर्ते कि आपका सफ़र मासियत का सफ़र ना हो, आप स्टूडेंट ना हो, आप जॉब पर ना जा रहे हैं। ये जो हमारा 6 बजे का प्रोग्राम होगा डेली, इंशाल्लाह इसमें ज़्यादातर हम शरई अहकाम पे बहस करेंगे। जैसे आज हमने रोज़े के अहकाम पर शुरू किया है, जो फ़लसफ़ा रोज़ा है, बरक़ात रमज़ान है, नेमतें हैं, आदाब हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो इंशाल्लाह हम शाम के प्रोग्राम में आपकी खिदमत में आज ही पेश करेंगे। आप देखना ना भूलिएगा। अलबत्ता कुछ आदाब रमज़ान मैं यहाँ जिक्र कर देता हूँ। एक अहम अदब रमज़ान अल मुबारक में ये है कि आप इसमें कुरान कसरत से पढ़ें। कुरान इसमें नाजिल हुआ, शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, ये महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। इसमें एक रात वो है जो 1000 महीनों से अफजल है। 1000 महीने आजकल की एवरेज लाइफ बनती है, बल्कि हुजूर के ज़माने से लेकर आज। एक कॉल और ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम मौलाना साहब, कैसे हैं? ये बहन आप बताएं कैसी खैरियत से हैं? पहले तो सबसे पहले मुबारक हो बहुत, आप मुक़द्दस मकामात से ज़ियारत करके आ रहे हैं, आप माह रमज़ान शरीफ की बहुत बहुत मुबारक आपको। आपको भी बहुत मुबारक हो रमज़ान की। शुक्रिया बहन, अल्लाह आपको सलामत रखे। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा। कल भी आप लोगों ने जो प्रोग्राम किए थे बहुत उससे सबक हमें मिला। और मैं एक ही क्वेश्चन करना चाह रही हूँ कि जैसे मिडिल ईस्ट या किसी और कंट्री में लोग जो होते हैं फिर वो है तो वहाँ या तो उनके पहले रोजे चल रहे होते हैं या फिर बाद में, तो वो अगर एक्स्ट्रा मिल जाए तो फिर उस बंदे को क्या करना चाहिए? यानी किसी मुल्क में ट्रैवल करें, मतलब अगर जिस तरह यहाँ से जा रही है मिडिल ईस्ट से, वो पहले ही रोजे रखने शुरू कर देते हैं, तो उसके बाद जब आप अपनी अगर कंट्री में पहुँचेंगे तो जाहिर है वहाँ पे आपके ज्यादा रोजे हो जाएंगे, तो फिर उसका हिसाब होगा कि भी ईद जिस कंट्री में आप पहुंचेंगे, जिस कंट्री में आप पहुंचेंगे उस कंट्री के मुताबिक आप ईद करेंगे। उस कंट्री के मुताबिक आप रोज़ा खोलेंगे। जैसे बिल्कुल मैं जब कल परसों बल्कि चला था तो वहाँ पर रोज़े का टाइम कतर में हो गया था, तो मैं 26 घंटे के बाद मैंने रोज़ा खोला है। इसी तरीके से अगर कोई यहाँ से जा रहा है ईस्टर्न कंट्रीज में, तो उसका रोज़ा, हमारा तो 17 घंटे का है, हो सकता है उसका 12 घंटे का बन जाए, तो जब वो वहाँ पहुँच जाएगा तो रोज़ा खोल देगा। तो ये उसूल याद कर लीजिए कि रोज़े के रखने और खोलने का वक्त भी उस कंट्री के मुताबिक होगा जिसमें करंटली आप मौजूद होंगे, और रोज़ा रखने का और ईद करने का हुक्म भी उस कंट्री के मुताबिक होगा जिसमें आप करंटली मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया, आबदा बहन ने हमें कॉल की है, बहुत हम शुक्रगुजार हैं, इन्होंने हमें कॉल फरमाई है, हमारी मुआविन है। अल्लाह ताला सलामत रखे आपको भी, आपके घर वालों को भी। खुदा हाफिज़ नासिर। मुहतरम नाज़रीन नाज़रात, ये प्रोग्राम आप मुलाज़ा फरमा रहे हैं, ये प्रोग्राम आपके लिए ख़ास तरतीब दिया गया है। हालांकि रोज़ा भी होता है और कुछ आबाब की फरमाइश पर कि हम ये चाहते हैं कि जो लोग शाम को प्रोग्राम नहीं देख सकते, 6 से 7 बजे आप उनके लिए प्रोग्राम शुरू करें, तो इस नेक नियति से कि अल्लाह ताला इसको मेरे लिए और आपके लिए मग़फ़रत का ज़रिया बनाए और कुछ हमारे भाई बहनों तक शरीयत के आकाम पहुँच जाए। तो ये जो 58वां प्रोग्राम है सिरात मुस्तकीम का, रोज़े के बारे में, आज तकरीबन आकाम रोज़ा के बारे में ये प्रोग्राम है। जैसा कि आप जानते हैं कि मुफ्तिरात जिनसे रोज़ा बातिल होता है, जो चीज़ें हम लिख के भी दे चुके हैं, कुतुब फ़िक़्ह में भी दर्ज है, जैसे खाने पीने से रोज़ा बातिल हो जाता है। अगर भूले से कोई खा पी ले,
मुतलकन उसे खबर ना हो तो उसके बाद उसका रोज़ा टूटता नहीं, बल्कि वो रोज़ा बरकरार रहता है। इसी तरीके से जितनी भी मैट्रिमोनियल एक्टिविटीज़ हैं वो रोज़े को बातिल कर देती हैं। पूरे सर का गौता लगाने से रोज़ा बातिल हो जाता है। इसी तरीके से हल्क से बलगम वगैरह को जानबूझ के निकलने से रोज़ा बातिल हो जाता है। गुबार को निकलने से रोज़ा बातिल हो जाता है। ये वो आकाम हैं जो आपकी खिदमत में आसानी के साथ बयान किए जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुब्तला बे नहीं, तो हम उनका जिक्र नहीं करते। जो ख़वातीन मेंसेस में होती हैं वो जाहिर है कि रोज़ा नहीं रखती। जो मरीज़ हैं वो रोज़ा नहीं रखते, जो मुसाफिर हैं वो रोज़ा नहीं रखते। एक कॉल और ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम। अलैकुम सलाम। मैं होने बात कर रही हूँ मैरीलैंड से। जी, कैसी आप खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मैंने यही कहना था कि मेरे नाना अम्मी से और मेरी तरफ से आपको रमजान की बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको भी सेहत दे, आपकी नानी को भी। जो लोग रोजा नहीं रखते उनके लिए अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सवाल है। हूर नहीं, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आपकी नानी को भी, आपके तमाम घर वालों को। अभी मैं जवाब अर्ज करता हूँ। माशाल्लाह, ये बच्ची है हूर नहीं, ये सवाल कर रही है कि जो लोग रोज़ा नहीं रखते उनके लिए अल्लाह क्या हुक्म फरमाता है। ये बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है और हमारे लोगों को समझना चाहिए। रोज़ा न रखने वाले एक तो अल्लाह के अहकाम के मुखालिफ हो रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि कफारा वाजिब होता है, मासियत परवरदिगार है, अल्लाह के इस मुक़द्दस महीने की इहानत है, तौहीन है, और इसकी सज़ा अगर इस्लामी हुकूमत हो तो बहुत ही सख्त है। अब क्योंकि इस्लामी हुकूमत नहीं, लिहाजा इसकी सज़ा नहीं दी जाती। अलबत्ता इसकी सज़ा बहुत सख्त है, ताज़ीर भी है और हद भी है। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की। एक कॉल और ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर, आपके प्रोग्राम की आवाज सही नहीं आ रही है, तो बार-बार से आवाज ड्रॉप हो रही है। ये बदुआ फरमाएं, अल्लाह ताला हमारी टीम को लायक बनाए। ये ऑलमोस्ट 3 साल से मैं भी सफ़र कर रहा हूँ। खुदा ताला इंशाअल्लाह इसमें आसानी पैदा करे। कुछ तो वैसे भी बहन ज़रा आवाज़ हल्की है, रोज़ा भी है, रोज़े से ज़रा आवाज़ निकलती नहीं। बहरहाल इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे और बेहतर इसकी आवाज़ हो जाए। बहुत शुक्रिया। मोहतरम नाज़रीन व नाज़रात, आप प्रोग्राम मुलाज़ा फरमा रहे हैं। ये प्रोग्राम एक्सक्लूसिव 6 बजे तरतीब दिया गया है हर रोज़। ये फ़िक़्ह के अहकाम बयान, ख़ासतौर पर उन लोगों के लिए जो मसाजिद में नहीं जा सकते, इमाम बारगाहों में नहीं जा सकते, या जो जाते भी हैं तो उनको फ़िक़्ह का सेशन नहीं मिलता, या देर से पहुंचते हैं या जल्दी चले आते हैं, तो उनके लिए ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। आप ऐप लोड कर लें अपने फ़ोन के अंदर, तो आप फ़ोन में भी देख सकते हैं। almaditv.com की ऐप लोड कर लें। जादू पर, शावा पर, BTV पर भी हमारी नशरियात आती हैं। एक कॉल और ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मैं हुमैरा बात कर रही हूँ मैरीलैंड से। जी, कैसी खैरियत से? आपको रमजान मुबारक है। आपको मुबारक, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं? ये दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर, मेरा ये सवाल है कि जो लोग रोजे नहीं रखते की वजह से, तो उसका कफारा क्या है? रोजे जो नहीं रख सकते, अगर तो वो मरीज है, मरज की वजह से नहीं रख रहे,
تو ان کے لیے ایک مد ہے تقریباً، ویسے تو بنتے تو آج کل $10 ہیں، مگر $5 بھی اگر دے دیں تو ایک وقت کا کھانا انڈیا پاکستان میں غریب آدمی کھا لیتا ہے۔ ایک مد دینا واجب ہے، 14 چٹانک کے قریب ہے۔ تو یہاں تو میں $5 بھیج دیتا ہوں، وہ لوگ $5 غریب مسکین کو بھیج دیں۔ یہ اس کا مریض کے لیے جو مد ہے، سبسٹیٹیوٹ ہے۔ جو لوگ جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھتے ہیں ان کو ہر روزے پر تقریباً جو امریکہ کینیڈا میں رہتے ہیں ان کو $300 دینے ہوں گے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا جو لوگ جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور جو لوگ جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھتے اللہ انہیں روزہ رکھنے کی توفیق دے۔ بہت شکریہ، آپ نے کال فرمائی۔ حمیرہ نے ہمیں کال کی ہے اور انہوں نے ایک مسئلہ بھی پوچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت فرمائے رمضان کے روزے رکھنے کی، قرآن پڑھنے کی اور عبادت کرنے کی۔ ماشاءاللہ پہلا پروگرام ہے، اور کیونکہ یہ سفر زیارات کے بعد پہلا لائیو پروگرام ہے تو آپ نے دیکھا کہ رینڈملی آلموسٹ 8 کالز آ گئی، اور ابھی مولانا وسیم عباس صاحب کی طرف سے میسیج بھی آیا ہے کہ آواز اس کی ٹھیک ہو گئی ہے۔ تو میں گزارش کروں گا المہدی ٹی وی کے ارباب حل وقت سے کہ وہ آواز وغیرہ مہربانی کر کے پہلے دیکھ لیا کرے، کیونکہ ایسے نہ ہو کہ میں جب پورا 50 منٹ ذبح ہو چکا ہوں تو اس کے بعد آواز ٹھیک جائے۔ ویسے بھی رمضان ہے، بڑی مشکل سے آواز نکلتی ہے، تو یہ ذرا مہربانی فرما کے اس کا خیال رکھیں۔ محترم ناظرین و حضرات، ہمارا پروگرام اختتام پذیر ہونے والا ہے۔ نوٹ کر لیجئے، المہدی ٹی وی پر 6 سے 7 انشاءاللہ ہر روز یہ فقہ کا پروگرام آئے گا۔ آج ہم نے کچھ احکام روزے کے آپ کی خدمت میں عرض کیے، کل مزید احکام بتائیں گے۔ 7 بجے ٹھیک ہمارا دورہ قرآن شروع ہو جاتا ہے۔ یہ میں نے نجف اور قم سے سیکھا ہے۔ ہمارے جو وہاں کے علماء کرام ہیں ڈیلی بیسس پر دورہ قرآن کرتے ہیں۔ دورہ قرآن اس کو کہتے ہیں کہ اراؤنڈ، دورہ اراؤنڈ کو کہتے ہیں۔ اراؤنڈ لوگ بیٹھ جاتے ہیں، 2-3 طرف، 2 اطراف میں، یوں سمجھے 2 رویا لوگ بیٹھ جاتے ہیں، بیچ میں عالم بیٹھ جاتا ہے۔ عالم پہلے قرآن پڑھتا ہے، اس کے بعد علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کے بعد پھر جو شرکاء ہوتے ہیں وہ قرآن پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں دورہ قرآن۔ الحمدللہ یہ دورہ میں نے 1990 سے متعارف کرایا ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ امریکہ میں میرے علاوہ بھی ظاہر ہے مجھ سے جو پیش رو علماء ہیں، مجھ سے بھی افضل بہتر، انہوں نے بھی یقیناً محنتیں فرمائی ہیں جن ایریاز میں علیکم السلام ورحمۃ میں نے یہ دورہ قرآن متعارف کرایا۔ ماشاءاللہ ان میں یہ دورہ بڑا ہی کامیاب جا رہا ہے۔ تو آپ المہدی ٹی وی پر المہدی سینٹر میں ہونے والے دورہ قرآن کو ٹھیک 7 بجے واچ کرنا شروع کر دیں۔ ہم 1 سپارہ پلس ڈیلی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن کھول لیں، ہم یہاں سے پڑھیں گے، آپ انگلی سطر پہ رکھتے جائیں اور آپ ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں۔ اس کے بعد اور اردو میں 2 لیکچرز ہوں گے ڈیلی بیسس پر۔ اس دفعہ میں نے اردو میں جو لیکچرز ہیں وہ 1-8 دنوں کے بعد اصلاح معاشرہ کے عنوان پر میں نے رکھے، اور انگلش میں جو لیکچرز ہیں وہ پروٹیکشن آف جنریشن، کہ ہم اپنی نسل کیسے بچائیں، اس پر انشاءاللہ 20 منٹ 20 منٹ کے 25 منٹ کے وہ دروس ہوں گے، اسے بھی آپ واچ کر سکتے ہیں۔ فجر کی نماز کے فوراً بعد سخاوت القرآن کے نام سے درس آتا ہے جو انشاءاللہ کل 67ویں مرحلے میں داخل ہوگا۔ اس میں ہم صرف 10 آیتوں کی تفسیر روزانہ بیان کریں گے، وہ بھی مختصر ہوگا۔ یہ تفصیل ہے المہدی ٹی وی پر جو پروگرام لائیو آئیں گے، باقی بھی ریکارڈڈ پروگرام آئیں گے۔ ایک کال اور لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی جی میں حتیہ سارا بول رہی ہوں، اور
मेरा ये सवाल है जी। कि क्या मुसाफिर सफर में रोजा या मुस्तहब रोजा या फिर कज़ा रोजा रख सकता है? बहुत शुक्रिया, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आपको। आलिया ज़हरा हमारी परमानेंट व्यूअर है, कॉलर है। अल्लाह करीम आलिया ज़हरा, समन ज़हरा की तरह, हूर नईम की तरह हमारी कौम की सारी बच्चियों को ऐसे ही दीन सीखने की तरगीब अता फरमाए, रग़बत अता फरमाए, तौफीक अता फरमाए। मैं पेरेंट्स से भी कहूँगा कि आप अपने बच्चों को, बच्चियों को इनकरेज करें। जैसे ख़ास तौर पे आपके बच्चे इस वक्त स्कूल नहीं जा रहे, तो आप 7 बजे बल्कि 6 बजे उनको टीवी लगा के दे दिया करें, ताकि वो 6 से 7 वाले प्रोग्राम में सवाल भी करें बाकायदा। मोहतरम नाज़रीन और नाज़रात, हमारा प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होने वाला है। कल हम फिर आपकी खिदमत में 6 बजे हाजिर होंगे। आज पहला दिन था, थोड़ी सी ताख़ीर हो गई थी, माज़रत चाहता हूँ, और आइंदा इंशाअल्लाह किसी प्रोग्राम में भी ताख़ीर नहीं होगी। आप हज़रात व ख़वातीन हमारा 7 बजे से 8:45 बजे तक का प्रोग्राम देखना मत भूलिएगा। आज मैं उसमें ज़बरदस्त वज़ाइफ बता रहा हूँ, रमज़ान के बारे में आकाम बता रहा हूँ। यहाँ जो हमारे व्यूअर्स उस प्रोग्राम को ना देख सके, उनके लिए मैं चंद एक वज़ाइफ बता दूँ। रमज़ान में आपने 1000 रकत नमाज पढ़नी है, सुन्नत। इसकी तफसीर इंशाअल्लाह अभी थोड़ी देर वाले प्रोग्राम में आ जाएगी। 20 रकतें हर रात को पढ़नी है, 20 रातों में। आखिरी जो 10 है उनमें 30 रकतें पढ़नी है, ये 700 हो जाएंगी। और 3 जो कदर की रातें हैं उनमें 100 पढ़नी। या अली या अज़ीम हर नमाज के बाद पढ़ें, याद ना हो तो किताब से पढ़ लें। अल्लाहुम्मा अदखिल अला आलिल क़ुबूर सुरूर हर एक नमाज के बाद पढ़ें। क़राअत ठीक कर ले, इस पर भी इंशाअल्लाह मैं आपकी खिदमत में कल ज़रूर क़राअत ठीक करवा दूंगा। अक्सर लोग पढ़ते हैं आलिल क़बूर, ये कबूर नहीं क़ुबूर है, कल इसकी इस्लाह भी करवा देंगे। सहरी में ज़रूर उठें, रात को रोज़ा रख के ना सोएं। सहरी में उठें, सियासी रोज़ा ना रखें। सियासी रोज़ा होता है रात को 12 बजे रख लेना, और सियासी रोज़ा खोले भी नहीं। मजहबी रोज़ा रखें, मजहबी रोज़ा ही खोलें। 2 रकत नमाज हर रात में पढ़े। फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़े। अल्लाहुम्मा रब्ब शहर रमज़ान की दुआ पढ़े, जिस दुआ के बाद 40 साल के गुनाह अल्लाह माफ़ फरमा देता है। और एक दुआ ऐसी है जिसके बाद 70,000 गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। 70,000 गुनाह सिर्फ एक दुआ के पढ़ने से अल्लाह माफ फरमा देता है। इन दुआओं से इस्तेफादा करें। अल्लाह करीम आप सबको रोज़ा रखने की, दुआए सहर की, लुक़मत सहर खाने की, इफ्तार करने कराने की, मसाजिद में जाने की, कुरान पढ़ने की, दुआए सहर पढ़ने की, दुआए इफ्तिताह पढ़ने की, 20 के दिनों में, बेहज़ा रातों में दुआए मुजीर पढ़ने की, शब क़द्र में जोशन कबीर पढ़ने की, और अपनी क़ज़ा नमाजें पढ़ने की, सिला रहमी की, वालिदैन के एहतराम की, मोमिनीन के एहतराम की, मसाजिद की खिदमत की, ज़कात व खुम्स की, सदका व खैरात की तौफीक खैर मरहमत फरमाए। और अल्लाह इस रमज़ान को हम सब के लिए बेस्ट ऑफ द लाइफ रमज़ान करार दे। इन्हीं टूटे फूटे अल्फाज के साथ आज की हद तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। कल इंशाअल्लाह 6 बजे इसी प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। मस्जिदों में ज़रूर जाएं, ज़रूर सेंटर्स में जाएं, कुरान ज़रूर पढ़ें, सहर में ज़रूर उठें, बच्चों को भी रोज़े रखवाएं, खुद भी, घर वाले भी। अल्लाह तमाम भाई बहनों, बच्चों बच्चियों, बीवियों और भाइयों के लिए इस रमज़ान अल मुबारक को बेहतरीन रमज़ान करार दे। हम सब के गुनाहों को अल्लाह माफ़ फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना
انکا انت السمیع العلیم. خدا حافظ ناصر.